हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। आज हम सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए जो 50 डेज मॉक सीरीज चला रहे हैं उसमें 11th मॉक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। When was the first edition of Hello India? Who among the following leaders believed that safety valve theory was behind the formation of Indian National Congress? Which of the following subgroup is not included in the cost of living index? Manufactured goods, cost of living, housing and clothing, fuel and light, food and beverages. Subgroup is not included in the cost of living. Fuel and light, housing, clothing, manufactured goods. Maybe ये हम एक तुक्का लगा लेते हैं. Sarodi Saikia is an exponent. Solung festival is celebrated by which of the following? एक second. Which of the following is an adverse economic situation that can occur when consumers and investors hoard cash rather than spending or investing it, even when interest rates are low? Liquidity trap, demand supply gap, hoardflation, hoard cash. That can occur when consumers and investors hoard cash rather than spending it. यार ये होर्डफ्लेशन नहीं होना चाहिए. मुझे तो लग रहा है लिक्विडिटी ट्रैप है. ठीक है. Since when was the प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? How many members does the Indo-Pacific Economic Framework bloc have? Which of the following was the right first attempt at creating a separate and somewhat independent judicial organ under the direct control of king? Independent judicial organ. कैसी GS आई है यार आज. The National Vaccination Day is celebrated every year on March 16. The day was chosen to coincide with the birthday. पोलियो वैक्सीन साउथ ने बनाई थी. Which of the following states did not have sex ratio less than 900? Did not have less than 900. What is the potential consequence of hyperinflation in an economy? Increased purchasing power, enhanced stability नहीं. Erode value of countries' currency and instability lower. Ambedkar A Life, launched in January 2023, is written by which of the following articles? The state shall take steps to separate the judiciary from the executive and the public services of the state. The DBSP agree. A community that is in near equilibrium with the environment. क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, बिल्कुल एनवायरनमेंट ही बन जाता है ऑलमोस्ट जहाँ तक है. इज नियर इक्विलिब्रियम बैलेंस तो नहीं होगी. क्लाइमेक्स होनी चाहिए आई थिंक. स्टेटमेंट वन. देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स. ये तो गलत है. देयर दे आर कंटेन इन पार्ट 4. दो सही है. विच 5 year plan emphasized on agriculture owing to green revolution and improving production of rice? एग्रीकल्चर वगैरह तो फर्स्ट पे ही ध्यान दिया था. In February 2024, which of the following state state became to first to enact uniform? Uttarakhand. These type of clouds look like cotton wool. They are,
They exist in patches and can be seen scattered here and there. They have a flat base identified as cloud. Vegetable oils like wheat germ oil, sunflower oil are rich in hmm, ए तो नहीं होगा, ए भी नहीं होना चाहिए, B12 या ई होना चाहिए, ई लगा देते हैं. Who among the following addresses motion of thanks in Parliament? Lacrosse is the national summer sport of which of the following soils lower horizons are occupied by concrete layers because of the increasing calcium content downwards? हो सकता है एरिड. Which among the following scientists proposed the theory of relativity? चार्ल्स डार्विन की तो नहीं है. एल्बर्ट आइंस्टाइन, वॉटसन एंड क्रिक भी नहीं है. जॉन डेल्टन ने क्या किया था? ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ही लगाते हैं. What is the product of the reaction between sulfuric acid and sodium hydroxide? ये बन जाएगा NaSO4. NaSO4. NaSO4 बचा है. तो H. NaHSO4 और H2O. हाँ, 3H बन रहा है ना. चलो ठीक है. बहुत कम अटेम्प्ट रहा है पर ओके. Describe how will you say she visited the art museum yesterday in passive. The art museum was visited by her. Nitin and Usha got married days after their engagement was finalized. Got married quickly. Ceaseless मतलब जो रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यूअस. ग्रेगेरियस मतलब फ्रेंडली, इसका ऑपोजिट होगा नेगेटिव. सॉलिटरी जो अकेले रहता हो, ये हो सकता है. एफेबल तो होता ही है. ग्रेगेरियस मतलब फ्रेंडली. कन्विवियल. कन्विवियल क्या होता है? ये भी शायद फ्रेंडली होता है. रूमर की डायरेक्ट मीनिंग. डिनोटेशन मतलब होता है डायरेक्ट मीनिंग, कनोटेशन मतलब होता है इनडायरेक्ट. रूमर मतलब एक हेयर से सुनने के आने वाली बात. ये पांच अपन बाद में करेंगे. एक दो तीन चार पाँच, ठीक है. मेगा ट्राई टू. टू ये इन्फिनेटिव है, टू लुक आना चाहिए. टू लुक intently among the patches. He has become hard as a nail. Person with short temper नहीं. Sentiments without sentiments. One day the donkey suddenly stumbled down the stream. ये शायद PYP में है किसी 2024 के ही. A salt seller used to carry, B से start होगा. A salt seller used to carry the salt bag on his donkey to the market every day. और one day donkey suddenly stumbled down the stream and the salt bag fell into the water. On the way they had to cross a stream. तो B के बाद D है. B के पास सिर्फ D ही है. He had to stream. One day ऐसा ऐसा हुआ और फिर salt dissolve हो गया water में और वो light हो गया. ठीक. Let the rocket be launched. Let the countdown be started. Let the rocket be launched. Launch the rocket. Start the countdown. As easy as that. She has a very desk personality. विवरेंट में पहली स्पेलिंग सही है. Thousands of people trying to hide from police are fleeing. Trying to hide from police. ग्लटन्स तो खाने वाले, साइकोपैथ नहीं, पेट्रियट्स नहीं, फ्यूजिटिव्स भगौड़े. और काम का एंटोनिम. बिल्कुल काम नहीं, एजिटेटेड.
depicted a vivid portrayal of vivid मतलब बहुत ही कलरफुल सी चीज तो इसका synonym होगा vibrant. His manner is so elegant that they make him stand out from other people and he is respected by everyone. His manner is so elegant that they make him stand out from other people. From other people कहाँ? Among other people. लोगों की भीड़ में बीच में फ्रॉम अदर पीपल नहीं अमंग अदर पीपल होना चाहिए जहाँ पे भी एंड ही इज रिस्पेक्टेड 99% यही है शायद आंसर as soon as she received summons to a law- summons she went to a lawyer for an independent advice as soon as she received summons हो सकता है summonses भी होता है ये तो सही लिखा है summons summonses summons तो सही लिखा है she went to a lawyer for an independent advice independent advice क्या होता है इसमें लग रहा है मुझे तो यार I will finish my work frequently frequently मतलब अक्सर होता है always तो यहाँ पे फिट नहीं करना है ऐसे बस ये देखना है इसका I will finish my work replace करना है I will finish my work away I will finish my work near today always today later today to replace the underlined word with adverb of time adverb of time later ही है यार always तो नहीं होगा later today ही आएगा फिर she hers worn out shoes she hers थोड़ी आएगा हर ही आएगा she had faced much humiliation due to her worn out shoes मतलब फटे पुराने जूते the CEO of the company has been resigned नहीं has the CEO of the company had resigned due to personal has been resigned had been resigned रिजाइन तो खुद ही करते हैं तो had been क्यों आएगा call into question Ross were to raise doubts about something his friends took him to a place where beer is made brewery बेकरी तो जहाँ केक बनता है हम्म learning about ticks is important ticks मतलब जुएं ticks is important dash of the disease and problems they can cause in people and animals learning about ticks is important as of the because of the diseases and problems they can cause in people and animals. Ticks are related to spiders and are not insects. They are parasites that live outside their host body and infest a variety of animals. Ticks must feed on blood to survive, and when they feed, they can spread dash that can cause diseases. They can spread germs that can cause diseases. Ticks are found all around the world and सॉरी यार टिक्स वो नहीं होते हैं टिक्स कोई और चीज होती है लाइस होते हैं जो सिर पे रहते हैं जो है ticks are found all around the world and various deaths have been tried to control these parasites. Ticks are found all around the world and various deaths have been tried. Intentions, criticism, strategies have been tried. Contracts नहीं, intentions, criticisms नहीं, ठीक है. 79th में क्या था? ओके और 94th में क्या है? फ्रॉम अदर पीपल लग रहा है इसमें 95th में फॉरेन ठीक रीजनिंग पे आते हैं इसमें सबसे बढ़िया रहता है
इधर से चेक कर लो कि कौन सा सेट हो रहा है। 4 मतलब आई, आई, जी, एस, जे, ए, डब्ल्यू। जिक्सॉ। जे, आई, जी, एस ए डब्ल्यू। एस ए डब्ल्यू मतलब है 653। 653 सिर्फ एक ही जगह पे है। In a certain code language, gang is written as 77, byte is 25, pic is 1611। हम्म, तो 77, ये देखो, जी होता है 7, जी होता है 7, तो पहले जगह 2 ले लिया, इधर पे 2 और 5 ले लिया, इधर पे 16 और 11 ले लिया, तो 15 और 5। हाँ, तो ऐसे करके एक स्क्वायर बनना चाहिए, टेढ़ा वाला स्क्वायर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट, और इधर पे ये ऐसे तो ठीक है। ये ऐसा है, ये तो हर जगह से ही बना है। ये 3 नहीं होंगे, 2 होंगे बस। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। ओके। मल्टीप्लाई के बदले लगाना है डिवाइड, तो इधर आया 12। डिवाइड के बदले लगाना है प्लस, और माइनस के बदले लगाना है मल्टीप्लाई। प्लस के बदले लगाना है माइनस। ये हुआ 130 माइनस 34। 30 माइनस किया और फिर 4 माइनस किया, 96 प्लस 12 हुआ 108। 6 इंटू 2 माइनस 2। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो 8 और 10 से मुझे दिख रहा है 18। 6 इंटू 3, इन दोनों से दिख रहा है मुझे 30, पर वो 12 इंटू 3, तो ये तो नहीं हो रहा है ऐसे। और अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये है 16, और 8 इंटू 2 ये है 30। 24 इंटू 2 क्या पूछ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस इंटू 3, इन दोनों का डिफरेंस है 6 इंटू 3, नहीं करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस इंटू 2, इन दोनों का डिफरेंस इंटू 2, ठीक है। a-b इंटू 2, a-b इंटू 2 सही है, और सेम वे देखना था, देख लिया। तो अगर मैं इसको, अगर मैं देखूँ इधर पे देखूँ, ये 21 है, ये 400 कुछ नंबर है। तो पहले इस पे देख लेते हैं जरा। 85 प्लस 5, प्लस के बदले अगर मल्टीप्लाई हो गया 147, तो ये और बड़ा बन रहने दो। फर्स्ट से ही देखेंगे, फर्स्ट से ही, या एक सेकंड ये वाला और देख लो। मल्टीप्लाई के बदले अगर डिवाइड आया, तो फिर ये हो गया 17 प्लस 147 माइनस डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई, तो 143। देखो ये सही बन गया। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी देख लेनी चाहिए, थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी चाहिए, वरना फर्स्ट से लेकर ट्राई करते रहते अपन सब तक। तो इधर पे देखो, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से कभी बनाना है, फर्स्ट और सेकंड में सबसे पहले कौन सा आ रहा है? SOMA, सेकंड आएगा पहले, ठीक है। तो 4 5 और 1 में सबसे पहले कौन सा आ रहा है? 4 5 और 1 में SOM, SOM, E, E, T, W और O, 5 आएगा सबसे पहले, 2 के बाद 5 सीधे। If today is Thursday, then which day is it exactly 3 की पावर 6th day after today? uh, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। और ये है 9 की पावर 3, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा डिवाइड बाय 7, क्योंकि रिमाइंडर से मतलब है। 7 कैसे डिवाइड किया? रिमाइंडर आया 2, 2 की पावर 3 होगा 8, इसका भी डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 7, 1। और अब एक थर्सडे में जोड़ दोगे तो तुम्हारा फ्राइडे आएगा, ठीक है। जिसे पता नहीं हो कि ऐसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, आप सॉल्यूशन नोट कर लेना। 63 में 15 जोड़ने पे ये आ रहा है,
इसमें बंदा अच्छा ऐसा नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ने पे ये आया 64+1। इन दोनों को जोड़ा तो आया ठीक ठीक। A+B+1 is C। तो ये है 26+1 7, सही तो है। तीनों ठीक है। हम्म। पता करना है कि P इज द पैटर्नल अंकल ऑफ R, मतलब R के पापा का। P इज द पैटर्नल अंकल ऑफ R, ठीक है। पापा के भाई P हैं, ये देखना है कहीं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। P इज द फादर ऑफ R। यार ये थोड़ी होगा, अंकल बनाना है उसे। तो दूसरा ऑप्शन है P इज द ब्रदर ऑफ R। P उसके ब्रदर भी नहीं हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन देखो, P इज द सिस्टर ऑफ R। फोर्थ ऑप्शन, P इज द ब्रदर ऑफ Q। और Q इज द फादर ऑफ R, ठीक। फोर्थ ऑप्शन से बन गया। हम्म। इससे पहले मैं ट्राइंगल पे ध्यान दूंगा, ट्राइंगल और उनके अंदर सर्कल्स पे। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट, फोर्थ एलिमिनेट, सेकंड और थर्ड में है। इधर देखो दो सर्किल नहीं है, एक ही है, तो आंसर 2। 32 में 17 जोड़ा। अरे ये क्या हो रहा है, -9 किया, फिर 3 जोड़ा। एक चीज दिख रही है मुझे, स्क्वायर्स। ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, बराबर से अगल बगल में, तो गैप तो नहीं है। एक ये दिख रहा है कि -8 किया, फिर ये कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। और 32 में पहले तो +17 किया, फिर -9 किया, फिर +24 किया, फिर +17 किया, फिर -9 किया। अच्छा, 17 -9 +24। तो इधर पे जब -9 करिए तो इसमें भी 24 जोड़ दो 72 में, 96। ठीक है, सीरीज जो फॉलो करवा रहे हैं वो उसमें। तो असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा आना चाहिए? फर्स्ट आ रहा है, फोर्थ और फिफ्थ में सबसे पहले कौन सा आएगा? ये 13 है, ये 19 है, फोर्थ पहले आएगा, फिफ्थ आ रहा है, फिर सेकंड और थर्ड में पहला कौन सा आएगा? अच्छा, ये इंग्लिश के हिसाब से नहीं कह रहा है, ठीक। तो डॉन का मतलब होता है सुबह। सुबह के बाद होगी मॉर्निंग, तो 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 ही आएगा, क्योंकि वो है सनराइज। नहीं, सबसे पहले डॉन, फिर होगा सनराइज 5, सनराइज के बाद होगी मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद होगी डस्क जो नाइट के पहले आती है, फिर होगी नाइट। ए को बी लिख दिया, सी को डी लिख दिया, तो डी को ई लिखेंगे। 13 - 1 12, 15 - 1 14, तो E-1। फिर इधर पे भी सब टी ही है। फोर्थ वाला देखो, U-1, इधर पे फोर्थ वाले में 16 -1, इधर पे फोर्थ वाले में -1, तो डी 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 आएंगे। 20 - 1, इधर -1, 20 - 1 एस है, और 14+1, 12+1, 18+1 19, डबल एस। ठीक है, टी इधर था, लेफ्ट में गया और लेफ्ट गया, फिर इधर आया, फिर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन, ऑल फ्लोरा आर प्लांट्स, ओलिया को देखो क्या बोलते हैं, ओनली अ फ्यू प्लांट इज फौना को बोलते हैं, सम प्लांट्स आर फौना एंड सम प्लांट्स आर नॉट फौना। ठीक है, मैंने सुलॉक्स की वीडियो डाली है, आप वो देख सकते हो। तो क्या देखना है कि सम
प्लांट इज नॉट fauna, some plant is not fauna, ये तो बता रहा है अपने सेंटेंस ही। और नो फ्लोरा इज fauna, क्या फ्लोरा के पास 100 है? हाँ। क्या प्लांट कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो वो बनेगा भी नहीं। ये कैसे मैंने किया, ये आप स्लॉथ की वीडियो देखना, आपको भी वेन डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। 779, 393, 81, ये ठीक है। 8 का अगर अपन क्यूब कर दें तो वो 512 होता है। 512 में 50 जोड़ दिया, ठीक है। ये होता है 216, उसमें 50 जोड़ दिया। 9 होगा 729, उसमें 50 जोड़ दिया, 779। ऑप्शन ए। इसमें क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो एस के ऑपोजिट में तुम्हें यू होगा, टी के भी एक छोड़ के होता है, ऐसे ऐसे। और ए के ऑपोजिट बी। तो देखो, ये अगर कहीं दिख रहा हो। हम्म, तो एस के सामने, एस के अगल बगल यू नहीं दिखना चाहिए तुम्हें, टी के अगल बगल तो क्या है, ये बनना चाहिए, ठीक है। तो एस टी, एस टी ए कोई उसके सामने का नहीं आया तो फर्स्ट वाली बन जाएगा। अच्छा, फर्स्ट के साथ और भी बन रहे हैं, ठीक। तो क्या सेकंड बन रहा है? नहीं, सेकंड के सामने यू लिख, अगल बगल में यू था, इधर पे सामने लिखा है तो वो नहीं बनेगा। बी के सामने का ए है तो सेकंड नहीं बनेगा। थर्ड बन रहा है वी टी, ओनली वन ही बन रहा है, ठीक। ऑल अप्लायंसेस आर इंस्ट्रूमेंट्स एंड नो डिवाइस आर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स का रिलेशन बन गया। पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो पहले कंक्लूजन चेक करो, कंक्लूजन चेक करो। सम अप्लायंसेस आर डिवाइसेस, क्या सम अप्लायंसेस डिवाइस हो सकते हैं? नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का रिलेशन पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी सही होगी क्योंकि कंक्लूजन गलत है। तो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर अप्लायंसेस, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर अप्लायंसेस नहीं, तो इसकी पॉसिबिलिटी सही होगी। एल वाई डैश बी ए, वाई के बाद डब्ल्यू दिख रहा है यहाँ पे तो डब्ल्यू आना चाहिए, ठीक है, आ रहा है। एल वाई डब्ल्यू बी ए एक्स, उसके बाद एक्स। एल वाई डब्ल्यू के बाद बी के बाद एक्स, एक्स के बाद वापस एल, तो वो तो यहाँ है। एल वाई डब्ल्यू बी ए एक्स, सेट हो गया। हाउ मेनी इंडियंस आर एजुकेटेड एम्प्लॉयज बट नॉट प्राइवेट, इंडियंस क्या है? सर्कल में है। एजुकेटेड क्या है? पेंटागन में है। लेकिन अपन को और उसके एम्प्लॉयज भी देखने हैं। एम्प्लॉयज किसमें है? अच्छा, ये एम्प्लॉयज है। तो सर्कल, पेंटागन और इसमें जो लाई कर रहा है वो है 23 और 45। वो कह रहा है प्राइवेट नहीं होना चाहिए तो 45 नहीं होना चाहिए, ओनली 23 आंसर है। ठीक, 29 से 4 टाइम्स पे, 49 से भी 4 टाइम्स पे, तो इसका 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 3 बार। एक ही नंबर है 3 से स्टार्ट, तो समझ जाओ। सॉरी। 22 का स्क्वायर 484। अरे, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है इससे। 9 का स्क्वायर 81 होता है, उसमें 19 प्लस 10, 29 जोड़ा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 31 प्लस 10, 41 जोड़ा है इसमें। ऐसा तो नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन। इसमें प्लस 2 कर दो तो 11 हुआ, 11 का स्क्वायर 121। 121 में अगर 11 माइनस कर दे तो ये बन रहा है। 13 में 2 जोड़ दो, 15, 15 का स्क्वायर 225। 225 में ही 15 माइनस कर दो, ठीक है। तो 7 में 2 जोड़ा 11, 11 का स्क्वायर, सॉरी, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 का स्क्वायर 81 में -9 किया तो 72 ही आ रहा है। तो आपका आंसर ए हो गया बस। बाकी सब में तो मैच कर रही है वो चीज़, +2 का स्क्वायर करके वही नंबर जोड़ देना, माइनस कर देना। ए के बाद बी के बाद सी आना चाहिए, सी है। 19, 20, 21 आना चाहिए, सी के बाद यू इधर इधर है। डी माइनस सी है तो माइनस भी है, तो ऑप्शन 3। यार, एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लग जाता है।
हम्म। तो ये किस में एम्बेडेड है? रोटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। हाँ, सेकंड में तो नहीं है, थर्ड में है। चलो, रीजनिंग में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैथ्स पे आते हैं। शॉपकीपर जो है डिस्काउंट देता है 14% का परचेज ऑफ 10 kg। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द राइस इज 30 kg एंड द मार्क प्राइस इज 42। द वेइंग मशीन और द शॉपकीपर एंड इट शोड इतना व्हेन द एक्चुअल वेट इज इतना, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक। तो इसको करते हैं इन्वेस्टमेंट रेशियो से। आप खुद शॉपकीपर बन जाओ और देखो कि क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या रेशियो है, रिटर्न है। देखते हैं, ये हो जाना चाहिए एक बार में। तो अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 14%। 14 को आप बोलोगे दो, 7 से इसको बोलोगे 7/50, ठीक है। तो 50 इन्वेस्ट कर रहे हो और 43 में बेच रहे हो, वो ये बोल रहा है। 10 kg की बात हो रही है। और द कॉस्ट प्राइस ऑफ द राइस इज 30 रुपी पर केजी एंड द मार्क प्राइस इज 42। तो वो इन्वेस्ट करता है 30 पे और 42 पे बेचने की बात करता है। रिटर्न ले रहा है 42 पे। और फिर उस पर डिस्काउंट भी दे रहा है, तो ये रहा डिस्काउंट। द वेइंग मशीन जो है फॉल्टी है और वो शो करती है 1 kg के बदले 900 ग्राम। तो वो इन्वेस्ट करता है 900 ग्राम और फायदा लेता है इसका। इसको अपन 9:10 का रेशियो बोल देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है, ये इसको काटेगा, बचा 5, ठीक है। 3 इसको काटेगा 3 बार पे, 3 इसको काटेगा 14 बार पे। और कोई किसी को काट रहा है क्या? नहीं। तो ये 90 × 5 है। और इधर पे क्या है? 14 × 3 है 42। 14 × 4 होगा 56 प्लस 4 59। सही किया ना? 14 × 3 42, 14 × 4 56, 46 प्लस 4, यार 56 प्लस 4 60 होगा भाई। ये होगा 450। तो कितने का फायदा? 50 जोड़ दिया 500 हो गया, 500 मतलब 100, सॉरी 50 जोड़ दिया तो 500 हो गया। तो 102 प्लस 50, 152 का फायदा 450 पे, ठीक है। 5 से 9 बार, 5 से 2 बार, इसको बोल दूंगा 304/9। 3 इसको काटेगा 3 बार पे, 27। 3 4 बचा। फिर से मैं 3 ही बार पे काटूंगा, 33 हर जगह ये। 27 फिर 7 बचा। तो 8 टाइम्स पे तो नहीं, तो 7 टाइम्स पे काटेंगे, ठीक है। 33.7 सिर्फ एक ही जगह पे है, उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे। हाँ, साइन 40 है ये, तो ये निकालना है। इसमें ASTC रूल लगना है, इसे अभी देखते हैं। द प्राइस ऑफ टी हैज इंक्रीज बाय 25%, बट रिचा हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर बाय इतना ओनली। हम्म। तो जो रेवेन्यू होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं शायद ये। एक्सपेंडिचर, अच्छा ठीक है। एक्सपेंडिचर होगा प्राइस इनटू कंजम्पशन बाय व्हाट परसेंटेज, सो रिचा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को उसने क्या किया? इंक्रीज कर दिया, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया है। तो इसको बोलेंगे 3/20, तो 20 से 3 ज्यादा। और प्राइस को भी बढ़ा दिया है, तो 4 से ये 5 हो गया। एक्सपेंडिचर, should Richa reduce her consumption to maintain the same level of expense towards tea? As the price of tea has increased by but Richa has decided to increase her expenditure towards tea by इतना। ये कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? 405 बार, ये हो गया 25, ये हो गया 23। 4 से मल्टीप्लाई किया ये 100, ये 92। तो 8% से कम कर दिया, हाँ सही है, ठीक है। How many natural numbers are there which give a remainder of 8 when 160 is divided by these natural numbers? तो 15 से अगर आप इसका डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। फिर एक और बार करोगे 5 आएगा। तो ये तो 8 नहीं दे रहा है। 13 से अगर करोगे तो 13 से करोगे 4 बार पे 520, ठीक है। बचा 100। 7 टाइम्स पे करोगे 90 बाय 9 आएगा। 14 से 620, 14। 14 से 4 टाइम्स पे 560, ठीक है, 0 और 6। 14 से फिर से 4 टाइम्स पे 56। 4 रिमाइंडर आ रहे हैं, ऑब्वियसली 12 ही है फिर।
Sudha borrowed 10,500 रुपए from his friend and returned it into two equal half yearly installments of 20% rate compound interest. ठीक है, हाफ ईयरली की बात हो रही है। टू हाफ ईयरली मतलब 4 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी फिर 10-10% के हिसाब से शायद। अरे यार, रेट को तो हाफ करनी पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट को भी ट्वाइस करना पड़ेगा या नहीं? करना तो पड़ेगा आई थिंक। 10 से 11 हुआ, फिर इसका स्क्वायर, टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इतने। इंस्टॉलमेंट देखा नहीं है CISI का, पर एक बार एक सेकंड इसको दे करके देखते हैं। ये होगा 121, इसका मल्टीप्लाई किया 11 से, ये भी हो गया 121, ये 110। ठीक है, तो तुमने इसको, तुम्हारी इंस्टॉलमेंट है 121 की और ये बना 210। हाँ ठीक 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 ठीक। इंस्टॉलमेंट को कुछ नहीं करेंगे, वो जैसी है वैसी वैसी रखी रहेगी। ये इसको 0 बार गया, ये 50 बार, 1 यूनिट की वैल्यू है 50। ईच इंस्टॉलमेंट पता करनी है, इसका 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 5 60, 60 50। इंस्टॉलमेंट का हाफ या ट्वाइस नहीं करेंगे, रेट का करेंगे बस। द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस if A starts running from Delhi and B starts running from Kolkata, मतलब दोनों each other opposite direction has a distance between Kolkata and this is this। ओ भाई, ठीक है, 1240 अपॉन इनका सम 14 इंटू 5/18 करूंगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में वाला चाहिए अपन को कुछ। 18 काटेगा इसको 9 बार पे, नहीं नहीं नहीं, 16 से 9 टाइम्स, 18 से 8 टाइम्स, हाँ। 5 इसको 2 बार पे काट देगा, 2 इसको 4 बार पे काट देगा, 4 इसको 31 बार पे काट देगा। लेट्स गो। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, व्हाट इज द एरिया? पता कर लो कि ये कहीं वो तो नहीं है। दिख गया मुझे, ये है 7 24 25। ये क्या है? ये है अपना ट्रिपलेट। तो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज को नहीं लोगे बस आप। 24 × 7, 2 का 12 बार, 12 7 84। If the sides of a triangle are this, then what is the area of the triangle? अरे अरे अरे, दोनों से दो दो भी काटे हैं ना, तो 84 का 2 × 2 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 84 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 320 और 16 336। अगर इधर पे ऑप्शन छोटे छोटे भी दिए रहते दो तो फिर गड़बड़ हो सकती थी। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर LW, ठीक है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज S if 3 times of L plus W is 5 times of S, then which of the following is equal to the perimeter of rectangle? ओके, इसका मतलब है L plus W अपॉन S दिया है मुझे 5/3। इसको इधर ही रहने दो S को। वो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, मतलब मैं ट्वाइस से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, 10S/3 होगा। बहुत इजी है ये क्वेश्चन तो। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ये? ठीक है, ये है 1/cos²। इधर से मैंने साइन कॉमन लिया, सॉरी सिर्फ साइन कॉमन लिया। अंदर क्या बचा? sin² - 1, मतलब कि माइनस का cos²। ये दोनों गए, माइनस का साइन बचेगा बस। ठीक है, when 5 is subtracted from the numerator of the fraction and 9 is added to the denominator of the fraction, the fraction becomes 1:2। तो x/y, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये है। 5 is subtracted from the numerator and 9 is added to the denominator, तुम्हारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। 2x - 10 is y plus 9। ओके, find the original fraction if the denominator is 4 more than the numerator। अरे यार, वो कह रहा है कि जो तुम्हारा y डिनोमिनेटर है वो 4 ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो y की जगह पे वैल्यू रखो आप इसकी। ये है -10, ये भी 9 भी इधर ही आ जाएगा, -19 हो जाएगा ये पूरा। और y क्या दिया है 4 + x, तो अब 19 को इधर ले आओ और x को इधर ले जाओ। x हो जाएगा 19 + 4 23। x है 23, तो तुम्हें पता करना है क्या था, तो नॉर्मल फ्रैक्शन था
23x, और वाई था इससे 4 ज्यादा, 23/27। बी ई, अच्छा, बी ई और ए डी आर मीडियंस है, यहाँ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, और जी ई जो है वो 9 है। अगर ये मीडियंस हैं तो बी जी इज टू जी ई होगा 2:1 के रेशियो में। अब अगर तुम्हारा जी ई 9 दिया है तो ये 18 होगा। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी। एबीसी पूरे का एरिया पता करना है। अच्छा, ये 18:9 दिया है, और तो कुछ अच्छा जीडी भी दिया है ना। जीडी है तुम्हारा 7, तो 7 × 2 ये 14 हो जाएगा। ठीक है, इसे एरिया कहाँ से आएगा? ओके ओके ओके, ये साइड निकल सकती है 7, 9, इधर से भी ये निकल जाएगा। ये 90 पे है, वैसे तो ये सभी 90 पे होंगे। यार रहने दो इसे, क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है अभी इसका। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन, ये छोड़ो अभी। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज इतना। ठीक है, दो नंबर में एक्स और वाई, उनका प्रोडक्ट वैसे क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। ठीक है, प्रोडक्ट तो दिया है ये, और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को एलसीएम ही रहने दो, एलसीएम पता करने को कहा, एचसीएफ है 20। ठीक है, 2 से 60 बार का, एलसीएम तुम्हारा 60। ये फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई इक्वल टू एल इंटू एम, एल इंटू एच। A regular polygon has n minus x side. The ratio of interior angle to exterior angle is to 1. ठीक है, वैसे इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू एन एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल को कैसे बोलेंगे? n-2 इंटू 180। सॉरी यार, ये सीधी पता नहीं क्या कर रही है। हाँ, n-2 इंटू 180 अपॉन एन, और 360 अपॉन एन, ये है तुम्हारा एक्सटीरियर। ये दिया है 8:1। एन से एन कटा, 0 से 0 कटा, ये 2 बार गया, तो n-2 तुम पे आया 8 × 10 16, एन आया तुम पे 18। 1 मिनट। और वैसे एन की जगह मुझे क्या, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एन की जगह मुझे ये रखना है n-6। तो ये है n-8 इक्वल्स टू 16, मतलब n इज इक्वल्स टू 24 आएगा तुम्हारा फिर। हम्म, इसलिए मिस्टेक हो जाती है अभी फालतू। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेम्स कलेक्टेड बाय बी एंड दैट ऑफ बाय सी इज, टोटल नंबर ऑफ स्टेम्स कलेक्टेड बाय 7 स्टूडेंट्स इज द। ठीक है, 7 लोग हैं, इनका 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, 100 के हिसाब से इंटू 9 करना होगा बस आंसर में। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेम्स बी और सी। बी और सी में डिफरेंस क्या है? बी 9 है, सी 14 है, दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 का। 5 × 9 45 हो जाएगा। इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। द यूनिट डिजिट ऑफ, जब भी तुम्हें 2 3 7 8 दिखेगा, उसमें आप इसकी पावर में 4 से डिवाइड करोगे, और अगर रिमाइंडर मतलब ये 0 आया रिमाइंडर तुम्हारा, जो कि ये जा रहा है, तो उसको वापस 3 की पावर 4 लिख दोगे। 3 की पावर 4 होता है 9 का स्क्वायर, मतलब 81, तो 1 आएगी तुम्हारी यूनिट डिजिट। ये 2 3 7 8 के लिए यूज होता है। इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 × 5 = 15 / 3, 17/3, ऑफ लगा है, ये बना है 5 का डिवीजन, और ये 2 3 6, 6 + 5 11/3, प्लस 3 7/3 इंटू 7, 7 × 1 = 7 12, 3 से 4 बार, 4 3 12, मतलब कि यहाँ है, सही लिख रहा हूँ मैं, इधर 4 है, 4 इसको 3 बार पे काटेगा 3 3 9, ये हुआ 18,
18 भी क्यों, 20 हुआ। ये 20/9 हुआ, मतलब यहाँ पे 20/3 हुआ, तो ये होगा 3/20। ये ऐसा होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17/4। इधर दिया है A can do 4/7 as much work as B in 2/5 of time। तो B जो है 5/2 काम कर रहा है फिर उस हिसाब से। और ये क्या लिखा है, A can do 4/9 as much work। तो A कर रहा है 4/9 ऑफ B, तो 10/9। ये इनकी एफिशिएंसीज हो गई। If they together take 27 days to complete in a day of the time। तो ये इनकी एफिशिएंसी हुई। और फिर बोल रहा है कि दोनों को काम करने में जो है साथ में इतना टाइम लग रहा है। तो एक काम करो, बी को लिखो, ए को लिखो, इनका इनकी एफिशिएंसी क्या है, बी की है 5/2, ये है 10/9। 5 इसको 2 बार काटेगा, इधर 9 आया, इधर 4। ये है इनकी एफिशिएंसी। टाइम क्या होगा, 4:9 होगा। और अगर इन दोनों को जो है टुगेदर 27 दिन लग रहे हैं, तो इनका सम 13। नहीं नहीं, इसको ये रहने दो। 27 इंटू इनकी एफिशिएंसी का सम अपॉन बी की एफिशिएंसी 9। 13 × 3। ये तो नहीं लिखा है बस। A can do इतने as much work as B in इतने of time, 2/5 of time। छोड़ते हैं इसे भी। Let x be the difference, the center of two circles which do not touch each other are 41 meter apart। ठीक है, which do not touch each other, इनका जो सेंटर है वो 41 मीटर अपार्ट है। दी रेडाई दी है इतनी इतनी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ डी का स्क्वायर, मतलब 41 का स्क्वायर जो कि होता है 4 का स्क्वायर 16। 1 4 × 0 2 8, 1681 माइनस इन दोनों का डिफरेंस 9। 9 का स्क्वायर 81, 1600 आया, 1600 का स्क्वायर रूट 40। तो 40 होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर ये ट्रांसफर होती तो आप रेडियस का जो डिफरेंस किया उसका सम करते। द डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम व्हेन इट मूव्स। तो जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली वेरिएबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो अगर मुझे इधर पे एक कांस्टेंट अप्लाई करना होगा तो ऐसे कर दूंगा, अ मैन ट्रेवल्स 36 किलोमीटर इन 9 आवर्स। तो वैसे ही इसकी स्पीड आ गई फिर तो, 4 kmph। फाइंड द इक्वेशन दैट रिलेट डी एंड टी। डी एंड टी, तो डी इक्वल्स टू के टी रहेगा यार। यार डी इक्वल्स टू 40 कह दो, तभी 36 बन जाएगा। थोड़े नए क्वेश्चन है पर बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। पर द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज अ ट्राइंगल ऑफ एरिया। देखो प्रिज्म है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है बस। ठीक है, बेस एरिया दिया है, दी हाइट ऑफ द प्रिज्म दिया है, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आता है, बेस एरिया इंटू हाइट करके बस। यह है 5/2, दूसरे 5 बार 25 × 75 इंटू, ठीक है, 25 × 11 275। 2 पाइप्स हैं, इनको भी एक सेकंड के लिए छोड़ो। जितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना आपसे अपन वो करा करेंगे पहले। मल्टीपल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं पहले तो, पहला फोकस ये। हम्म, ये दिया है और अपन को प्लस चाहिए, आप +2 कर दो बस। तो ये हो जाएगा 2x + 1y का स्क्वायर। इसका स्क्वायर आएगा इधर पे भी, इधर आएगा 19 का। ठीक है, 19 आएगा, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, √19। ठीक है, तो ये दोनों ही नेगेटिव होंगे। 12 का क्यूब होता है 1728, 8 का क्यूब होता है 512, 4 का क्यूब होता है 256।
236, हाँ। 6 7, इसमें से 768 माइनस कर दो, 0 बचा। ये 6 है, ये 9, और ये 6, 960। ये क्या कर रहा हूँ मैं? 1728, 4 का क्यूब 64। अरे भाई भाई भाई, 512 - 64, 512 - 64, हाँ। ये है 50, ये 12 - 4 8, और ये है 44। तो 1728 में से 448 माइनस करना है, तो 0 बचा। 12 में से 4 गया 8, 16 में से 4 गया 12, 1280। अभी भी गलत हो रहा है। 8 का क्यूब तो पक्का 512 होता है। मैं उसमें से माइनस क्यों कर रहा हूँ भाई, दोनों को ऐड करना है, साइन बस नेगेटिव का आएगा। ये देखो, ये होता है जब जब कुछ ना कुछ हो। ये हो जाती है दिक्कत। 16 में से 5 गया 11, 11 52। आई होप उसमें 2 मिनट से ज़्यादा वेस्ट ना हुआ हो बस। 76। अब देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं। ठीक है, ये वाला देखते हैं। Two pipes G and H are attached to a tank and alone can fill the tank। ठीक। G भरता है 20 मिनट में, H भरता है 40 मिनट में। कोई और पाइप तो नहीं है? If there is a leakage at the bottom which can empty। ठीक है, एक लीकेज है जिसको अपन L बोल देंगे, ये 80 मिनट में। इनकी सबकी एलसीएम लिया, 80 आया, ये 4 है, ये 2 है, ये -1 है। माइनस क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है, खाली कर रहा है ना। हाउ मच टाइम टेकन बाय बोथ पाइप्स टू फिल द टैंक विद लीकेज। अच्छा, तो 6 - 1 5, 80/5 16। इजी क्वेश्चन था। 69 से आओ। ठीक। बार ग्राफ दिखाया हुआ है सेल्स ऑफ वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर, दो चीज़ों का ही। ठीक है, वॉशिंग मशीन है ब्लू। ठीक। लेट एक्स बी द डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ वॉशिंग मशीन इन फरवरी एंड मार्च। वॉशिंग मशीन का फरवरी और मार्च में डिफरेंस 125 - 75 50। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू है तुम पे 50 इन फरवरी, एंड वाई विद द एवरेज सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर इन जून एंड जुलाई। जून और जुलाई में रेफ्रिजरेटर की एवरेज सेल, ये 55 60 65 70 75। ठीक है, तो 55 60, यह है 60, यह है 80, तो 140, 140 का एवरेज 70। क्या बोल रहा है? डिवाइड करना है तो 5/7, 5/7। ओके। आज थोड़ी सी नई अप्रोच है क्वेश्चंस, क्योंकि छूट जाते हैं अगर फालतू में लेंदी क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाता हूँ, जैसे ये। पता नहीं क्या गलती कर रहा हूँ इसमें, इसको देखेंगे। पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहली बात तो 10th के हैं ब्लू वाले। ठीक है, 10th के ब्लू वाले। ओके। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 10th एंड बोर्ड एग्जाम फ्रॉम सिटी ओ। सिटी ओ से कौन आए हैं 10th और 12th में? ये कितना है, कैसे समझेंगे इसे? 1150 के बाद 1200, 1250, 1350। ठीक है, 50 50 50 हो रहा है ये। तो ओ से है 1200, 1200 1950, 2000 और, तो 3200 इस व्हाट परसेंटेज। ठीक है, 3200 का परसेंटेज निकालना है किसमें? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम एन। 250 प्लस 1000, ये तो 1000 है, इसमें 50 माइनस कर दो, 1500 जोड़ना है, 25। ठीक है, इधर डबल जीरो लगाओगे तो इसको हटाएगा, ये 25 से 4 बार, 4 3, 4 2 8, 128, 128%। और 61। इसमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सभी 90 होंगे या नहीं। 52। ठीक। तो इसको बोल सकते हैं, इधर से कुछ रिलेशन। मान लिया ये 90 है, ये ए बी सी है, और ए है 70, तो 90 70 160, 160 के हिसाब से ये 40, और ये दिया है तुम्हें ए, ये 1, तो ये होगा बेस। क्या होगा? बेस होगा 1 - a स्क्वायर। ठीक है, साइन 90
प्लस सेक 40, नीचे दिया है 1 - दिस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, ओके। क्या इसको बोल सकते हैं कि ये साइन सेक का स्क्वायर स्क्वायर था वो। नहीं नहीं, जुड़ेगा कैसे? ठीक है, साइन 90 इसको 270 प्लस 20 बोल सकते हैं। नहीं, 70 यूज करना है ना, समझ गए। ठीक, इसको मैं बोलूंगा साइन 360 माइनस 70। ठीक है, प्लस इसको बोलूंगा सेक 270 प्लस 70 अपॉन में 1 - वही ये दोनों लिख लो। रुको, अब इसको ये कैसे करेंगे? 360 में माइनस किया तो साइन का साइन रहा, और ये लेकिन नेगेटिव आएगा, और साइन साइन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 270 यहाँ है, 270 में प्लस किया, ये तो नेगेटिव ही आएगा। सेक का बनेगा कोजेक। ठीक है, और 70। ठीक है, तो साइन 90 तुम पे है माइनस है, और ये है -1/, अपॉन 1 - ए इंटू ये, और दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो 1। ये बन रहा है। नहीं, तो ये पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो नीचे 2a आ रहा है, और 1 - a² अपॉन 2a। हो गया, 2 ढाई मिनट लग गया इसमें, पर हो गया। बड़ा नया क्वेश्चन था ये, अभी तक आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन, खासकर सीजीएल के टीयर होने में। 1 2 साल से तो नहीं देखा है, पहले आया हो तो पता नहीं। यार इसमें कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। 68, इसमें भी यार क्या बोल रहा है? A can do 4/9 as much work as B by its of time। तो as much work in as B in 2/5 of time। तो in x टाइम में ये 2/5 कम कर लेता है। अगर मैं, तो ये कह रहा है ये 10 कर रहा है और B कर रहा है 9 काम, ये इनकी एफिशिएंसी। हाँ, एफिशिएंसी रहेगी अगर इनको रेशियो के बदले नंबर बना देंगे। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। आगे ये 27 इंटू इनका सम, ये 19 हुआ। और हाँ देखो, हो गया। रेशियो की वजह से तो गड़बड़ हो रही थी। अब अगर बी से कराना है तो ये 37 हो गया। ये सिर्फ एक ये बचा है। यार अगर जी ही तुम्हारा 9 है, तो ये पूरा ये 18 है, इतना 18 9। ठीक है, और जी डी तुम्हारा 7 है, तो ये 7 2 14 है। इसका एरिया निकल जाता है क्या ऐसे? इस ट्राइंगल का एरिया तो निकल रहा है। ठीक है, बेस इंटू हाई, इसका 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से 2 टाइम्स, 7 7 14 189। ठीक है, इतने का बच रहा है बस। कैसे निकलेगा ये? नहीं आ रहा है यार ये तो। फाउंड द एरिया ऑफ ABC।
7 times of 27 plus 7 times of 27 का half 7 7 is 49 49 into 3 by 2 छोड़ो। तो 157 स्कोर रहा है अपना। ठीक है, सही स्कोर है। आज मैंने कुछ सोचा था कि थोड़े डिफरेंट वे में मॉक को अटेम्प्ट करेंगे। सही रहा है यार, इस हिसाब से वो चीज़ काम तो की है। देखो कितना सही स्कोर रहा ओवरऑल। इसमें सिर्फ एक गलत, इसमें भी एक गलत, इसमें भी एक गलत, इसमें 3 गलत है। ठीक है, इसमें 16 स्कोर मेरे इतना ही आता है ज़्यादातर, इससे कम भी आता है। जीएस में बढ़िया, सॉरी जीआई में बढ़िया, इंग्लिश में बढ़िया स्कोर है। मैथ्स में भी इसको अच्छा ही बोलेंगे, 80 80 98 परसेंटाइल है। इसमें 16 है। ठीक है, इस मॉक को मैं मॉडरेट लेवल तो नहीं कहूँगा, पर ठीक है, मॉडरेट का 1 पॉइंट तो दे ही सकते हो इस मॉक को आप। क्या गलत हो गया जरा देख लेते हैं। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर एप्लीकेबल एप्लीकेश all instruments are appliances. All instruments are appliances. पॉसिबिलिटी मतलब कंक्लूजन गलत होना चाहिए था। अरे सही तो है ये। some devices some appliances are devices, पर इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन बनना चाहिए था, तब वो सही होता। ठीक ठीक। मैथ्स में क्या गलत है? अच्छा, एक अनअटेम्प्टेड भी है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर, मैंने इसमें ये देख लिया कि इसमें से किसका डिवाइड करो इससे, इसका इनमें से डिवाइड करके देख लिया कि रिमाइंडर किससे आ रहा है, जबकि ये नहीं करना था। देखना था कि ऐसे कौन से नेचुरल नंबर्स हैं कि which gives a remainder 8 when this is divided by these remains। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? remainder 8 so the number will be greater than 8। ओके ओके, इसमें -8 किया कंप्लीटली, तो फिर ये ही जाएगा, और इसके वेक्टर्स हैं ये। नंबर सिस्टम का है ही है यार क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी टाइम से नंबर सिस्टम देखा नहीं। हाँ, तो इसका क्या था? ये दोनों मीडियन है, बी ये इतना, ये 18, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, ए बी जी का जो एरिया है वो आ गया, कैसे? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से। ठीक है, और एरिया, अबे यार, एरिया ऑफ ए बी जी जो है, अच्छा, तो ये सीन था। ये चीज मुझे याद करनी थी, मीडियन मीडियन के लिए। ये जो है इस पूरे ट्राइंगल का थ्राइस ही तो होगा, मीडियन 3 ही तो होते हैं, तो ये दो मीडियन के बीच में। हद है यार, इसको और भी एक तरीके से समझ सकते हो। ये दिखा क्यों नहीं मुझे, क्योंकि मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि ये मीडियन गया, ये मीडियन गया, और ये मीडियन गया, तो ये वन 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 पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये 2 है। जब ये 2 है तो ये 2 है, और ये 2 है, तो इसका 2 ही तो होगा। निकाल लिया था इसका आंसर सही, फिर भी रह गया। चलो कोई ना। अच्छा, इंग्लिश में भी देख लें, क्वेश्चन तो गलत है ही। हिज मैनर इज सो एलिगेंट। हिज मैनर, हिज मैनरिज्म होना चाहिए था, बिना आंसर दे के बता सकता हूँ। हिज मैनरिज्म इज सो एलिगेंट होना चाहिए, या हिज मैनर्स आर होना चाहिए। ठीक है, मैनर को मैनर्स बोलते हैं। ओके, तो मैनर्स आना चाहिए था, हिज मैनर्स और आर। देखो कहाँ लिखा है, हाँ, हिज मैनर्स आर। ही इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल, स्टैंड अमंग अदर। अच्छा, स्टैंड आउट कराना है फ्रॉम, तो अमंग क्यों होगा? सही बात है। चलो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस से कोई वैल्यू मिलती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को शेयर करो।
और जो भी अगर कोई आपको डाउट हो तो बेशक पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।